اے کاش کہ میں پہلے ہی بیوی سے پوچھ لیتی کہ میں یہیں ٹھہر جاؤں اور آپ کے فراق میں اشک بہاؤں، یا مدینے کی طرف لوٹ جاؤں، اور جہاں کہیں بھی ممکن ہو آپ کے اس سفر کی حقیقت کو بیان کرتی رہوں، آپ کے پاس ہی ٹھہر جاؤں اور اپنی ماں سے جدائی کو برداشت کروں، یا پھر اپنی ماں کے پاس چلی جاؤں اور آپ سے دوری کا غم سہوں، یہی قم میں آپ کے قبر مبارک کی مجاور بن جاؤں اور آپ کے زائرین کی خدمت کروں، یا آپ کی سفیر بن کر مدینہ چلی جاؤں۔ اے کاش میں پہلے ہی بیوی سے پوچھ لیتی۔ بنو عباس کئی سال بنو امیہ سے جنگ و جدال کے بعد سن 132 ہجری میں حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے اس قیام کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد کو حق دلانے کے نعرے سے ہوا، لیکن اقتدار کے حصول کے بعد اولاد رسول پر مختلف قسم کی پابندیاں لگا کر ان کو محدود کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ یہ سلسلہ فقط آئمہ معصومین کو درباروں میں پیش کیے جانے اور قید و بند کی اذیتوں تک ہی نہیں رکا، یہاں تک کہ حکومت بنو عباس کی طرف سے خاندان رسالت کو درس و تدریس تک کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی انتہا ان کی 5ویں حکومت کے زمانے میں دیکھنے کو آئی، جب امام حسین علیہ السلام کی حرم کی عمارت کو نقصان پہنچایا گیا، اور پھر مزار کی علامت اور قبر مبارک پر سایہ کرنے والے قدیمی بیری کے درخت کو کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ ہارون الرشید کے بعد اس کا بیٹا مامون الرشید تخت و تاج کا وارث بنا۔ مامون دارالحکومت مرو میں ساکن تھا اور بغداد و مدینہ کے حوالے سے پریشان تھا۔ اپنے بھائی امین الرشید کو بغداد میں شکست دینے کے بعد کسی حد تک بغداد سے اس کی پریشانی کم ہو گئی، لیکن مدینہ کے لیے اس نے ایک نئی چال چلی۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو مدینے سے دارالحکومت کی طرف ہجرت اور ولی عہدی کے لیے مجبور کیا جانا مامون الرشید کی نیت کو آشکار کرتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی مرو کی جانب ہجرت کے تقریباً 1 سال بعد مدینہ کی مرکزیت کے خاتمے کے لیے اب کسی اور کو مدینہ سے ہجرت کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا۔ اے مسلمانوں، خیر و برکت کو خود سے دور نہ کرو۔ جو لوگ جوار رسول اللہ میں ہیں اور مکہ سے آنے والے حجاج کی میزبانی کر رہے ہیں، اپنے اس نیک عمل کو تکمیل تک پہنچائیں۔ اللہ کی نیکی قبول کرے۔ دعا کریں کہ حاکم مسلمین مامون الرشید کو اللہ کامیابی اور نصرت عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ مسلمانوں کے حاکم کے دل کو شاد کرے جس نے رسول اللہ کے دل کو شاد کیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ یقیناً راضی ہیں اور خوش ہیں کہ آپ کے چچا زاد بیٹوں نے تاج حکومت کو آپ کے فرزند کے سر پہ سجا دیا۔ رسول اللہ کے صالح چچا زاد بیٹوں کی حکومت کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا کریں۔ اللہ صالحین کو حکومت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ احسان فراموشی کا کوئی علاج نہیں ہے اے شخص۔ مجھے نہیں معلوم کہ حکومت بنو عباس ایسا کیا کرے کہ تم اور تم جیسے لوگ حاکم کے خلاف زہر نہ اگلیں اور راضی ہو جائیں۔ تم نے دعا کرنے کا کہا اور میں نے دعا کی جو آتی تھی مجھے۔ بات کو طول دے کر جھگڑے کی شروعات نہ کرو تو بہتر ہے۔ کیسا جھگڑا ابن خوف؟ کہیں بغاوت کے دور کی طرح دوبارہ تلوار اٹھانے کا ارادہ تو نہیں تمہارا؟ کیا تمہیں مرو میں کسی نے نہیں بتایا کہ باطل گفتگو کے ذریعے حج کے اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے؟ خطبہ تو تم نے سنا دیا، اب قبر رسول کی زیارت کرو اور تبرکات خریدو اپنے اہل و عیال کے لیے۔ میرے اور میرے جیسوں کے راضی ہونے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ در حقیقت مجھے اپنی نہیں بلکہ تمہاری فکر ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر تمہاری آنکھیں میرے اس سبز رنگ کے لباس کو نہیں دیکھ رہی جو تم لوگوں کی ہی پہچان ہے، تو وہ سکے جن پر علی ابن موسیٰ کا نام کندہ ہے، جن سے تم کھانے پینے کا سامان خریدتے ہو اور اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے ہو، کیا وہ بھی دکھائی نہیں دیتے؟ سب دکھتا ہے۔ مجھے حکومت عباسی کے سکے بھی نظر آ رہے ہیں اور تمہاری آنکھوں میں نفرت بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب اس سے زیادہ اور تم لوگوں کو کیا چاہیے؟ حکومت میں حصہ بھی مل گیا، لیکن بات ایسے کر رہے ہو جیسے کوئی نقصان ہوا ہو تمہارا۔ کس حصے کی بات کر رہے ہو؟ ہمارا تو حق مارا گیا ہے۔ کاش کہ ان لوگوں نے صرف ہمارے لباس کا رنگ چرایا ہوتا۔ کیسی حکومت؟ تم تو ابھی مرو سے آئے ہو، بتاؤ
क्या अली इब्न मूसा ने वली अहदी को कबूल करने के लिए हुकूमत में अदम मुदाखलत को शर्त नहीं रखा? बताओ ताकि सब जान लें। देखो मुसलमान, ये जो तुम मेरे सामने यहाँ मदीना के बाजार में हुकूमत के खिलाफ अपनी तलवार जैसी जबान चला रहे हो, यानी अली इब्ने मूसा की हुकूमत हो जैसे, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, मरहूम हारून रशीद के जमाने में अगर कोई भी शख्स बोलने की जुर्रत करता था तो उस बागी को शहर से निकाल बाहर कर दिया जाता था। या अल्लाह, मरहूम हारून पर रहमत फरमा और एहसान फरामोशों पर अपनी लानत भेज। तुम्हारी ये जबान जो दुआ और लानत के लिए इतनी चलती है, तो फिर तुम रसूल अकरम की ये हदीस इन सब के सामने क्यों नहीं सुनाते? उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह बेरी का दरख्त काटने वाले पर लानत करे। जबान संभालो अपनी। जानते हो कि क्या कह रहे हो? इसने मरहूम हारून की तौहीन की है। अल्लाह की लानत हो इस पर। मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात थी। मदीना के हालात मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा खराब थे। अली इब्ने मूसा की वली अहदी के जरिए लोगों के एतराज की आग को बुझाना मकसूद था, लेकिन हुकूमत अब्बासी से मुखालिफत की वो आग बुझी नहीं थी, बल्कि राख तले दबी हुई थी। मेरे लिए ऐसे मौके पर जब मैं हाकिम के सामने किसी को ले जाने पर मामूर हूं, सबसे अहम मामला अमन सलामती का है, और मैं सफर के पहले मरहले में ही समझ चुका हूं कि यहां अमन सलामती का बहरान है। अमीर, ये तो फकत एक शख्स को ले जाने का हुक्म है। अली इब्ने मूसा के फर्जंद और जौजा को दारुल हुकूमत नहीं बुलाया गया। मेरा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। मुझे क्या मालूम कि पैगाम में क्या लिखा है। अगर ये इतना ही अहम और फौरी था तो तुम इतनी देर से क्यों लेकर आए मेरे पास? मेरे जिम्मे एक और काम भी था। इसहाक इब्ने मूसा पर नजर रखनी थी मुझे। वो मक्का से यहां पहुंचा है ताकि सफर में साथ जा सके। इसहाक इब्ने मूसा, अमान दे मुझे, अमान दे मुझे इसहाक इब्ने मूसा। मैं मामूर हूँ, आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ हूँ। मदीना का रास्ता मुझे बहुत तवील लग रहा था, जैसे कभी खत्म ही ना होगा। मुझे हुकूमती कासिद की खबर पहुंचाने से पहले मदीना पहुंचना था और बीबी को मुत्तला करना था कि एक गैर मुतवक्के सफर दरपेश है। मुझे इसलिए भी जल्दी पहुंचना था कि वो जान लें कि इस सफर में हम खुद उनकी हमराही करेंगे, इससे पहले कि हुकूमती कासिद उन तक कोई बुरी खबर पहुंचा दे। आया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बीबी कहाँ है? आपके भाई अली इब्ने मूसा के घर में है, वहां दर्स दे रही हैं। सब खैरियत तो है? कोई कासिद आया था दारुल हुकूमत से? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है। कोई बुरी खबर है क्या? तुम परेशान ना हो अबू अस्मा। भाइयों, अल्लाह खैर करे। कासिम भाई हमजा, इब्राहिम, देखो जनाबे इसहाक आए हैं।
خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید ہم تو کب سے آپ کے منتظر تھے ماشاء اللہ ابن موسیٰ تشریف لائے ہیں جناب آپ کی داڑھی تو بالکل سفید ہو گئی ہے آئیے منہ میٹھا کر لیجئے. خوش آمدید یہ لیجئے جناب. شکریہ. دارالحکومت جاتے ہوئے میں پورے رستے اپنے بھائی علی ابن موسیٰ رضا کے ہمراہ تھا اور مامون کے محل میں ان کے ساتھ ہی داخل ہوا تھا. ظاہراً ہمارا استقبال بہت عالیشان ہوا مگر در حقیقت اس کے پیچھے اس کی منافقت چھپی ہوئی تھی. مامون عباسی نے اس استقبال کا آغاز اپنے لباس کے رنگ کو تبدیل کرنے سے کیا. بنو عباس کی پہچان سیاہ رنگ کا لباس ہے لیکن وہ سبز رنگ کا لباس پہن کے آیا جو کہ ہماری پہچان ہے. چچا زاد بھائی کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی. پھر اس کے حکم پر وہاں ایک تشت لایا گیا اور وہ تشت میرے بھائی علی ابن موسیٰ کے سامنے پیش کیا گیا. مامون کے اصرار سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ولی عہدی کی یہ پیشکش بھی مدینہ کو ترک کرنے کی مانند ہے جس سے انکار کا اختیار نہیں. مختصر یہ کہ ولی عہدی کے سکوں کے اجرا سے پہلے ہی علی ابن موسیٰ نے یہ شرط رکھی کہ وہ ولی عہد کی حیثیت سے زیادہ ذمہ داریاں نہیں سنبھالیں گے، نہ کوئی عہدہ دیں گے، نہ ہی کسی کو معزول کریں گے اور نہ ہی حکومتی مراد لیں گے. چچا زاد بھائی، آپ اپنے بھائی کی طرح کفران نعمت نہ کیجیے. آپ جانتے ہیں وہ تو مال اور اقتدار کو خود سے دور رکھتے ہیں. آپ کو میں حاجیوں کے امیر کی ذمہ داری سونپتا ہوں تاکہ میرے اور میرے ولی عہد کے کاندھوں کا بوجھ کچھ ہلکا ہو سکے. یہ سفر اسی حوالے سے ہے اور مجھے یہ امیر الحجاج کی ذمہ داری مامون عباسی اور ولی عہد کی طرف سے دی گئی ہے. بابا جان، بی بی کا درس اختتام پذیر ہو گیا ہے. بی بی کا درس اختتام پذیر ہو گیا ہے. سب بھائیوں اور ان کے بیٹوں کو خبر کر دیں کہ فوراً سفر کی تیاری شروع کریں. زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس. یہ حقیقت ہے کہ میں آپ کی خاطر یہاں آیا ہوں. ہمیں مدینہ سے ہجرت کرنی ہے. حکومتی سپاہی کسی بھی وقت حکم نامہ لے کر پہنچ جائیں گے. قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. حکومت آپ کو مزید مدینے میں سکونت اختیار کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی. یہ ہمارے بھائی مولا رضا کا پیغام ہے آپ کے لیے. ہم سب بھائی سفر میں آپ کے ساتھ ہوں گے. حاجیوں کو پہلے ہی مکہ سے مرو کی جانب روانہ کر دیا ہے میں نے تاکہ میں آپ کے ہمراہ سفر کروں. کیا کوئی ہے اس گھر میں؟ سربراہ کون ہے اس گھر کا؟ تمہارے بڑوں نے سکھایا نہیں کہ بغیر اجازت کسی کے گھر داخل نہیں ہوتے. اس حکومت کے حکم نامے کو کس کے حوالے کروں میں؟ اس حکم نامے پر فوری عمل درآمد بھی میری ذمہ داری ہے. اگر آج کا دن ڈھل نہ رہا ہوتا تو میں کل کا انتظار نہیں کرتا. ولی عہد کی ہمشیرہ کو کل دارالحکومت کا سفر اختیار کرنا ہے. کوئی سوال نہیں کرے گا. فوراً تیاری کرو جانے کی. آپ لوگ اندر جائیے. سلامت رہو. شکریہ. پانی پانی. ٹھہر جاؤ، پانی ابھی نہیں پلانا اسے. زخم سے کپڑا ہٹاؤ، دیکھوں ذرا. برداشت کرو میرے بھائی. ایک صاف کپڑا لا کر دو مجھے. اسما، اس سے اس کے زخم کو صاف کرو. وہ چراغ پکڑاؤ ذرا مجھے.
जख्म काफी गहरा है। बहुत हसास जगह पर लगा है, काफी वक्त लगेगा ठीक होने में। मैं अभी आती हूँ। मरहम बना लिया तुमने? एक बार देख लीजिए। ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इसमें से कुछ और शामिल करो। बहुत ही मामूली से नमक का भी इजाफा करो इसमें और अच्छी तरह मिलाना। अब क्या करेंगे? तुम परेशान मत हो, बहुत ज्यादा खून बह चुका है उनका। जानती हूँ, लेकिन ठीक हो जाएगा। मैं कोई मदद कर सकती हूँ? दवा बनाते हुए कोई जिक्र वगैरह नहीं पड़ती क्या तुम? मैं अपनी वालिदा से तबाबत सीख रही हूँ, मुझे जादू टोना नहीं आता। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम मुतमईन तो हो ना कि जख्म के लिए यही मरहम बेहतर रहेगा? बेहतर तो ये है कि किसी को जख्म लगाने पर मजबूर न किया जाए। तो फिर तुम क्यों अपनी जुबान से वार कर रही हो? लोग कितने मुख्तलिफ होते हैं। बास हक के दिफा में ज़ख्म सहते हैं और अपनी जान निसार कर देते हैं, और बास न फ़कत ख़ुद को इससे दूर रखते हैं बल्कि ज़ख्मों पर नमक भी छिड़कते हैं। वालिदा जैसा आपने कहा था मैंने बना दिया। मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ आपका, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है ऐसी बातें सुनने की। क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम। पेड़ देना ना भूल जाऊं मैं कहीं। बहुत मुकव्वी होते हैं ये, ज्यादा इस्तेमाल मत करना। थोड़े से और। बेटी, ये तबाबत सीखने का कौन सा तरीका है? इनको उबाल कर इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले ये सीखो कि मरीज के साथ तुम्हें अच्छा सलूक करना है और सख्त लहजे में बात नहीं करनी। मैंने ऐसा क्या कह दिया बाबा जान जो आप नाराज हो रहे हैं? दरअसल मेरे कहने का मतलब ये था कि अब इन लड़ाई झगड़ों को खत्म हो जाना चाहिए। मामून अब्बासी ने हमारे मौला को वली अहदी का मनसब दे दिया है और बीबी को भी दारुल हुकूमत आने की दावत दी है। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि इस दुश्मनी के लिबास और उस पर लगे धब्बों को कराबतदारी और अपनायत के हौस में धो दिया जाए, ताकि हम भी सुकून का सांस लें और हमारे मर्दों के सरों पर से जंग और बदअमनी का साया दूर हो पाए। वरना इसी तरह आहो फरियाद और लड़ाई झगड़े की फिजा बनी रहेगी और तलवारें तेज होती रहेंगी। तुम्हारी जबान भी तलवार से कम तेज नहीं है। पकड़ो से। अब जबकि वो लोग सुलह चाहते हैं और अपनी तलवारों को न्याम में रख चुके हैं, और हम इस सुलह की शीरीनी को कड़वाहट में बदल देना चाहते हैं। हम मौला अली इब्ने मूसा को दारुल हुकूमत बुलाए जाने पर सुए ज़न करते रहे, तो बीबी को बुलाए जाने पर क्या कहेंगे? क्या ये खुशी की बात नहीं है? तुम्हें उन लोगों की नीयत के बारे में क्या मालूम? उन लोगों का जाहिर कुछ है और बातिन कुछ और है बेटी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके लिए उन लोगों का बातिन बिल्कुल जाहिर है। ला हौला वला कुव्वता। क्या इस घर में कभी सब एक साथ खुश नहीं रह सकते वालिदा? इस घर में हमेशा से दुख और परेशानियां नहीं थी। कभी ये घर भी खुशियों का गहवारा हुआ करता था बेटी। हम नन्हे मेहमान को खुशामदीद कहने एक कतार बनाए खड़े थे। क्या ही अच्छे दिन थे। यहाँ से वालिदा ने पुरानी यादों को ताज़ा किया और अच्छे दिनों के बारे में बताने लगी। इस बात का बारहा जिक्र किया कि हम मूसा इब्ने जाफर के घर के अफराद की तरह रहे हैं। उस घर में हमें कभी कनीज़ी और गुलामी का एहसास नहीं हुआ। बीबी की विलादत का जिक्र भी किया और बताया कि उस घर में खुशी का समा था। हमारे मौला अली इब्ने मूसा के लबों पर मुस्कुराहट थी, और ये भी कि मूसा इब्ने जाफर ने उस घर के बड़े होने की हैसियत से नौमौलूद के कानों में अजान दी। मेरी वालिदा ने सख्ती के दिनों गमज़दा यादों और मूसा इब्ने जाफर के हुकूमती बुलावे और कैदोबंद की अज़ियतों से सरफ़े नज़र किया, ताकि ये बता सकें कि मूसा इब्ने जाफर की अदम मौजूदगी में
अली इब्ने मूसा ने अपनी असीज हमशीरा को कभी बाप से दूरी का एहसास नहीं होने दिया। बहन और भाई के रिश्ते में उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता ज्यादा उजागर था, और ये आले मोहम्मद की शागिर्दा मदीना की खवातीन के लिए बेहतरीन मौल्लिमा साबित हुई। अच्छी यादों का तस्करा करते हुए बात मुझ तक आ पहुंची और बताया कि बीबी ने अपनी घर की खात्मा की बेटी यानी मुझे अपने भाई हमजा के साथ अज़दवाजी रिश्ते के लिए मुंतखब किया। मुझे बहुत खुशी है कि इस सफर में तुम बीबी के हमराह हो। मेरी बीबी का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफर के लिए तैयार हैं? ये वालिदा ने भेजा है, सफर में काम आएगा आपके। बहुत शुक्रिया। अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुश आमदीद। तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र है अल्लाह का। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया बेटा। वालिदा ने कहा है कि अगर आप चाहें तो सफर पर चल सकती हैं हमारे साथ। नहीं बेटा, ये हकीकत है कि मुझे बहुत याद आएगी तुम दोनों की, मगर मेरे अंदर सफर करने की हिम्मत नहीं है। मैं यहाँ खातून और मोहम्मद इब्ने अली की खिदमत में रहूं अगर तो ज्यादा बेहतर होगा, मुझे लगता है। बीबी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, मेरी प्यारी बेटी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मदीना में दोबारा मिल बैठेंगे, पूरा यकीन है मुझे। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, लेकिन उस वक्त मैं एक नातजुर्बाकार शागिर्दा नहीं रहूंगी जिसकी तबाबत में आसानी से खामी ढूंढी जा सके, बल्कि ऐसी तबीबा होंगी जिसने दारुल हुकूमत के माहिर तबीबों से तबाबत सीखी होगी और मेरी अपनी एक पहचान होगी। इंशाल्लाह। मेरे जिगर का टुकड़ा अब तुम्हारे हवाले। आपके जिगर का टुकड़ा है और मेरी आंखों का नूर है। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। सफर एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब जो भी हो, लेकिन खुदा हाफिजी की नागवारी से शुरू होता है, और सफर से एक दिन पहले की शब खुदा हाफिजी में गुजरी। एक फूफी की खुदा हाफिजी अपने भतीजे मोहम्मद इब्ने अली से, एक मौल्लिमा की खुदा हाफिजी अपनी शागिर्द खवातीन से, और अपने जद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार से खुदा हाफिजी। बनु हाशिम में एक खूबी ये है कि जब तक वो जिंदा रहते हैं अपनी खवातीन को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ते। किस रास्ते से जाएंगे? सहरा के रास्ते से जाएंगे। सहरा के रास्ते से? बिल्कुल। वो तो खतरनाक रास्ता है। खतरनाक है लेकिन मुख्तसर है। सफर शुरू करें। रास्ता बहुत तूलानी है और दिन छोटे हैं, हमें फौरन रवाना होना है। तूलानी सफर उन ज़ख़ीम किताबों की मानंद है जिन्हें पूरा पढ़ना मुश्किल है। बस अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफर खुशगवार भी हो सकता है और दुश्वार भी। ये सफर इस्तिराब का सामना करेगा, आसानी या दुश्वारी को मुसाफिरों के सामने पेश करेगा और तरह तरह की फिक्रों को जन्म देगा, लेकिन नहीं मालूम कब क्या वाक़या पेश आएगा। मुख्तसर लेकिन नाशनास रास्ते सफर के मौमे को और पेचीदा करते हैं, लेकिन मुझे जल्दी पहुंचने का हुक्म मिला था। काफिले को यहाँ रोकना पड़ेगा। रेत का तूफान आ रहा है। रेत का तूफान आ रहा है। जल्दी करो।
के दूध की लस्सी सहरा में गर्मी के एहसास को कम करती है। आप लोग क्या हज से वापस आ रहे हैं? सहरा का रास्ता क्यों इख्तियार किया? ये तो बहुत खतरनाक रास्ता है। ए बुजुर्गवार, आप तो इनके साथ थे। ये रास्ता खतरनाक है, क्या आपको मालूम नहीं था? क्या कह सकते हैं भाई? इस रास्ते के इंतखाब पे मजबूर थे। क्या कहा मजबूर थे? आप लोगों के साथ तो खवातीन और बच्चे भी हैं। ए बादिया नशीन, क्या तुम हमेशा लस्सी के जायके को अपने गैर मरबूत सवालों से इसी तरह बदजायका करते हो सकता है कि हमें देर हो रही हो। देर से पहुंचना बेहतर है, बजाय इसके कि इस बयाबान में अपनी जानों को खतरे में डाला जाए। रास्ते का तयन करना हमारा काम है, आपका नहीं जनाब इसाक। ये रास्ता थोड़ा तूलानी है लेकिन पुरअमन है, और उस रास्ते से बेहतर है जिसकी तजवीज हमें ये शख्स दे रहा है। तुलानी होने की वजह से क्या वो शख्स इस रास्ते से जाने पर राजी हो जाएगा? काफिला सालार हम हैं, इस सफर में वो हमारे साथ हैं। हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे जहाँ से हमारे भाई को ले जाया गया। हम गैर मदू मेहमानों का क्या करेंगे? लगता है इन मामूरों के अलावा कुछ और लोग भी हैं जो हमारे काफिले के साथ साथ हैं। वो मामून अब्बासी के जासूस हैं। जब तक मर्व में सब कुछ ठीक है, हमें इनसे कोई खतरा नहीं। हमारी सफर के हवाले से परेशानियों को देखकर बीबी ने फरमाया कि हमें परेशान होने के बजाय सफर की इन जहमतों से इस्तेफादा करना चाहिए। उन्होंने फरमाया कि जिस रास्ते से भी गुजरें वहाँ बयान हदीस और वाज़ो नसीहत की मजालिस का इनेकाद किया जाए। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि दारुल हुकूमत से आए मामूरों की मौजूदगी में ये मजालिस कैसे मुनक्किद की जाए, और दूसरी तरफ बीबी के इत्मीनान की वजह से मुतमईन भी था। कई रोज़ो शब सफर में गुजरे। हम बयाबानों, सहराओं और सरसब्जो शादाब इलाकों से गुजरते हुए जा रहे थे। हर रास्ते पर लोग हमें खुश आमदीद और खुदा हाफिज कहने के लिए मौजूद होते थे। आज हम सब इस मर्द मोमिन के मेहमान हैं। शब में यहीं कयाम करेंगे। अल्लाह कबूल करे। जितना मुमकिन हो इन मामूरों को मेहमान नवाजी में मसरूफ रखो। हमने आपको जहमत में डाल दिया। कैसी जहमत फर्जंदे इमाम, आपकी तशरीफ आवरी बाई से मुसर्रत है। आप लोगों की बरकत से अल्लाह ने आज कई साल बाद हमारे इस कबीले को बेटी की रहमत से नवाजा है, जो हमारे लिए खुशी का बाइस है। तस्वीर ज़ैनब, ऐ हम नाम ज़हरा, ऐ तस्वीर ज़ैनब, कुराने तक़द्दुस, ऐ तफसीर ज़ैनब, इस्मत है अजमत के गुलाबों में, तू आयत काज़िम है कुरान के हिजाबों में, तू आयत काज़िम है कुरान के हिजाबों में। तत्हीर तेरा पर्दा या फातिमा मासूमा, शीर रज़ा मौला या फातिमा मासूमा, ए जान
हम शीर रजा मौला या फातिमा मासूमा तू दुख्तरे ज़हरा है ज़ैनब की है तू सानी तू शम्मे हिदायत है